गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने 148 भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के रोज पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से सुरक्षा को लेकर आपको बता दें सारा मामला बताया है। हर्ष संघवी ने सबसे पहले जो रथ यात्रा के रूट पर जर्जर इमारतें हैं उसको डिमोलिशन करवाया और कुछ इमारत के आगे बाउंड्री लगाकर उस जगह को सुरक्षित किया है, क्योंकि कोई जान नानी ना हो या कोई इंजन ना हो उसके लिए कार्य किया है। उसके बाद में बताया है पुलिस की ओर से कड़े पुख्ता इंतजाम किए हैं, जैसे कि ड्रोन पर पूरे रथ यात्रा का ध्यान रखा जाएगा। सुरक्षा टावर का भी इंतजाम किया गया और सुरक्षा में सारी डिजिटल वेबसाइट्स का इंतजाम किया गया है। तो आइए जानते हैं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने क्या कुछ कहा। भगवान जगन्नाथ जी ने 148મી રથયાત્રા ऐतिहासिक यादगार અને સૌ ભાવિ ભક્તો વધુમાં વધુ સરળતાથી ભગવાન જગન્નાથજી, સુભદ્રાજી અને બલદેવજીના દર્શન કરી શકે તે માટે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થાઓ ગુજરાત પોલીસ, અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા ખાસ કરીને આ વ્યવસ્થાને દર વર્ષે વધુમાં વધુ ટેકનોલોજી જોડે જોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આ રથયાત્રા એ રાજ્યની સૌથી મોટી આસ્થા તથા સૌથી મોટી વ્યવસ્થાની યાત્રા તરીકે ઓળખાય છે। મહાપ્રભુ જગન્નાથજીની અમદાવાદની રથયાત્રા એ માત્ર અમદાવાદના શહેરીજનો જ દર્શનાર્થે પધારતા હોય છે એવું નથી હોતું। રાજ્ય અને દેશભરમાંથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો આ રથયાત્રાના દર્શનાર્થે અમદાવાદ ખાતે અષાઢી બીજના દિવસે આવતા હોય છે। આ રથયાત્રા એ 16 કિલોમીટરની એની રૂટ હોય છે। આઈજી કક્ષાથી લઈને વિવિધ કક્ષાના અધિકારીઓથી લઈને કોન્સ્ટેબલ સુધી 23,884 જવાનો રથયાત્રાની વ્યવસ્થામાં છેલ્લા અનેક દિવસોથી રાત દિવસ એક કરીને અમદાવાદના સૌ ભક્તજનો માટે આ વ્યવસ્થાઓ કરી રહ્યા છે। આ રથયાત્રા રૂટ પર 484 જેટલા જર્જરિત મકાનો કે પછી જે મકાન ભયજનક હોય તેવા મકાનો પર સીલ મારવામાં આવ્યા છે, જેથી કોઈ બી ભાવિ ભક્તો પર કોઈ બી પ્રકારે કોઈને કોઈ નુકસાન ના થાય તે માટે સીલ મારવા જોડે જોડે હોમગાર્ડ્સના જવાનો અને છાપરાથી એટલે કે પતરાથી એ દરવાજાઓ બ્લોક કરવાની વ્યવસ્થાઓ બી અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા અને અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી છે। આપણે આ રથયાત્રામાં છેલ્લા અનેક વર્ષથી વધુને વધુ ભાઈચારો સોશિયલ પોલીસિંગના માધ્યમથી લોકોને વધુમાં વધુ નજીક કરવાનો રથયાત્રા કારણ બન્યું છે। રથયાત્રામાં બધા જ સમુદાયોની ક્રિકેટ મેચથી લઈને બ્લડ કેમ્પથી લઈને અમદાવાદ શહેર પોલીસની મહિલા અધિકારીઓ દ્વારા આ 16 કિલોમીટરને આસપાસના વિસ્તારોમાં મહિલા બેઠકોનો બી ખૂબ મોટો અસર આપણે છેલ્લા 3-4 વર્ષથી રથયાત્રા દરમિયાન મહિલાઓનું બી ઇન્વોલ્વમેન્ટ આની અંદર ખૂબ મોટા પાયે વધ્યું છે। ગયા વર્ષે આ આખા રૂટને 3D મેપિંગ ડેવલપ કરવામાં આવ્યું હતું। આ વર્ષે એમાં ઉમેરો કરવામાં આવ્યો। 3D મેપિંગના આધારે જે
ફિઝિકલ જોડે જોડે 3D મેપિંગના ગ્રાફના આધારે આખો બંદોબસ્ત સેટ કરવામાં આવ્યો. આ વર્ષે આનાથી બી વધુ એક ઉમેરો જે અતિ મહત્વનો છે. લાખોની સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તો જ્યારે ભગવાન જગન્નાથજીના દર્શનાર્થે આવતા હોય ત્યારે કોઈ બી પ્રકારનું સ્ટેમ્પેડ ના થાય તે માટે વધુમાં વધુ પ્રયાસ તો કરવામાં આવી જ રહ્યો છે, પરંતુ ટેકનોલોજીનો બી ઉપયોગ આ વર્ષે એની અંદર એક સ્ટેપ વધારે કરવામાં આવ્યો, જે દેશમાં પહેલી વાર. आज जो रथ यात्रा का मौका आने वाला है और आज गुजरात के जो मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, उनका दौरा है रथ यात्रा के रूट पर, और यहाँ से निकलेंगे और आप एक मुस्लिम समाज से हो तो आप क्या कहोगे? 148 यात्रा. मेरा ये कहना है कि 148वीं जगन्नाथ रथ यात्रा निकलने की है, तो आज तक बरसों से कुछ साल पहले शहर का वातावरण ऐसा था कि लोग रथ यात्रा आती थी तो डरते थे, और आज का टाइम ऐसा आएगा कि हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर ने ये उत्सव उजाते हैं, और महाराज का स्वागत भी हर मुस्लिम कमेटियां करने जाती है, और एक कौमी एकता और कौमी भाईचारा ये होने के लिए अहमदाबाद शहर की पुलिस को मैं मुबारकबादी देता हूँ कि उन्होंने 5 साल से बहुत मेहनत की है, और ये हिंदू मुस्लिम की खाई को दूर करने में पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है, और उनको मुबारकबाद देनी चाहिए. और आज यहाँ आगे हमारे यहाँ गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी साहब आने के हैं, उनके इस्तकबाल के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, और उनको ऐसा एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपने इतनी सारी पुलिस रखी है, लेकिन हम ऐसा इच्छते हैं कि आज के वातावरण के अंदर ये शांति समिति के सभ्यों हर अहमदाबाद शहर के पुलिस स्टेशन के और बिगर पुलिस से भी ये रथ यात्रा निकल जावे, ऐसी हमारी लागणी है. और हम ऐसा चाहते हैं कि अभी आप पुलिस को बंदोबस्त में रखो, लेकिन हिंदू मुस्लिम साथ में रह के ने ये यात्रा को बहुत ही अच्छी तरह से चलाएंगे. इसका जैसा कि देखा गया कि हर बार कोई भी पर्व आता है, जैसे रथ यात्रा हो या पीर महमूद साहब बुखारी की मेहंदी हो या ईद मिलादुन नबी हो या मुहर्रम का पर्व हो, तो उसमें पुलिस डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि गली गली के अंदर पुलिस महकमे की तरफ से एक बहुत बड़ी सुरक्षा का जो आयोजन किया जाता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या करेगा? यही तो अहमदाबाद शहर की एक एकता की निशानी है, क्योंकि अहमदाबाद शहर की पुलिस ने ये रथ यात्रा के निमित्त ब्लड डोनेशन कैंप, शेरी नाटक और कितनी जाति महिलाओं की मीटिंग, युवाओं की मीटिंग, हर कारण पुलिस स्टेशन शांति समिति की मीटिंग, और ये हर त्यौहार यहाँ गायकवाड़ पुलिस स्टेशन की हद से शुरू होते हैं, जैसे ईद मिलादुन नबी, ताजिया होवे और रथ यात्रा होवे. ये 3 मेन त्यौहार ये गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन से शुरू होती है, और यहाँ के हिंदू मुस्लिम शांति समिति के सभ्य से शुरुआत होती है, और एंड में भी यहाँ पर पूरा होता है. तो मैं बहुत बड़ी मुबारकबादी देता हूँ कि ये अहमदाबाद शहर में 3 जुलूस जो निकलते हैं मेन, एक रथ यात्रा, एक ईद मिलादुन नबी और एक मुहर्रम का ताजिया, ये अहमदाबाद शहर की अस्मिता है कि ये कौमी एकता के ऊपर निकलते हैं, और आज दिन तक इसमें हर जगह के ऊपर पुलिस ने नागरिकों को हिंदू मुस्लिम को मिला के एक एकता का माहौल खड़ा किया है, वो बहुत अभिनंदन के पात्र है. पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर.